Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin presentation 12 using the superlative. Superlative degree of adjective we will use. Here in the instruction, they have said that when talking about a group of people or things, जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के ग्रुप या चीज़ों के ग्रुप के बारे में बातें करते हो तो यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री आप इस्तेमाल कर लो टू डिस्क्राइब द वन हैविंग मोर ऑफ द क्वालिटीज देन ऑल द अदर, ताकि एक आदमी या एक चीज़ या एक जगह आप बयान कर ले जो दूसरों से ज़्यादा खूबी रखते हो, right? And they have said in the A, you can see in the book as well, in the A, first one, the tallest building, the second one, the best actor, यानी सबसे ऊंचा बिल्डिंग, सबसे बेहतरीन एक्टर, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, सबसे ज़्यादा महंगा कार, द वर्स्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बदतरीन सिंगर जो है. Then they have also said that when one syllable adjective, so base form, comparative form, and superlative form they have used. One syllable adjective: old, older than the oldest; nice, nicer than the nicest; big, bigger than the biggest. Two syllable adjective ending in y: pretty, prettier, prettiest; ugly, uglier, the ugliest. प्रिटी मीन खूबसूरत, प्रिटियर निस्बतन खूबसूरत, एंड द प्रिटीएस्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत. एंड अगली मीन बदसूरत, अगलियर देन निस्बतन बदसूरत, एंड द अगलीस्ट सबसे ज़्यादा बदसूरत. एंड द थर्ड वन इज इर्रेगुलर एडजेक्टिव, दैट इज गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बेहतर और बेहतरीन. बेड, वर्स, वर्स्ट, खराब, खराबतर और खराब तरीन. एंड द थर्ड वन इज फार, फारदर, farthest, दूर, निस्बतन दूर और सबसे दूर, राइट. एंड एडजेक्टिव of two or more syllable then that don't end in y, जो y पर ख़त्म नहीं होते हैं तो वो एडजेक्टिव, जैसे बोरिंग, मोर बोरिंग देन, द मोस्ट बोरिंग. एंड एलिगेंट, मोर एलिगेंट देन, द मोस्ट एलिगेंट, मीन शानदार, निस्बतन शानदार और सबसे ज़्यादा शानदार. Then they have given some adjective as well. Some sentences, sorry, as well. The first sentence say Winfield Mall is the newest mall in the area. Winfield का जो सुपर स्टोर है या मॉल है ये सबसे नया है. The new mall is going to be the best the new mall is going to be the best place to shop in Winfield. सबसे बेहतरीन जगह होगा खरीदारी के लिए विनफील्ड में. थर्ड वन से विनफील्ड मॉल इज़ द मोस्ट मॉडर्न इन द एरिया. विनफील्ड का जो मॉल है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है इन द एरिया. एंड द फोर्थ वन से द पार्किंग एट विनफील्ड मॉल इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट इन द एरिया. द मोस्ट कन्वीनियंट सबसे ज़्यादा आरामदेह है या सहूलियतों से भरा पड़ा है इन द एरिया, right? So here we are talking about the superlative degree of adjective. We have also written over here that what's adjective? Adjective is a word which qualify a noun or pronoun. We will say this slash shows that there are different definition of adjective. Adjective is a word which qualify a noun or pronoun, जो किसी noun या pronoun को qualify करते हैं. और एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन में मॉडिफिकेशन लाते हैं, थोड़ा सा तब्दीली लाते हैं. द थर्ड वन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच लिमिट अ नाउन और प्रोनाउन, विच लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के माने को महदूद कर देते हैं, तो यही भी एडजेक्टिव है. द फोर्थ वन definition, some people also say that adjective is a word or a part of speech which adds something to the meaning of a noun or pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के माने में इजाफा करते हैं. सबका मतलब एक है, अल्फाज जुदा है और मतलब सबका एक है. एडजेक्टिव की यही तारीफ है. Then dear students, we are talking about the degree of adjective as well, that how many degrees an adjective have. So already we have discussed it, and you know that there are 3 degrees of adjective. How many degrees are there?
3. What's the first one? Positive degree up adjective, comparative degree up adjective, and superlative degree up adjective. These 3 degree, each and every adjective have these 3 degrees, right? What's positive degree? पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, ये डिस्क्राइब करता है या किसी नाउन या प्रोनाउन को बयान कर देता है, डिस्क्राइब. फॉर एग्जांपल इफ वी से बिलाल इज अ बॉय एंड बिलाल इज अ टॉल बॉय, लड़का है लेकिन कैसा लड़का है? टॉल लड़का है, लंबा लड़का है, तो यहाँ ओनली डिस्क्रिप्शन हुआ. इसी तरह अहमद इज मैन एंड या अहमद इज अ बॉय, अहमद इज अ स्मॉल बॉय, छोटा लड़का है, राइट. या आयशा इज अ गर्ल एंड आयशा इज अ नाइस गर्ल, एक अच्छी लड़की है, एक उम्दा लड़की है, राइट. नाइस गर्ल और नाइस गर्ल, राइट. सो ये सिर्फ बयान करते हैं, किसी बुराई या अच्छाई को बयान करते हैं. कंपेयर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. And comparative degree of adjective we have written, it is the comparison between two person, places or thing. मीन comparative degree में हम comparison करते हैं, it compares two person, two places or two thing. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिलाल और सलीम का टॉलनेस में कंपैरिजन करते हैं तो वी से बिलाल इज टॉलर देन सलीम और सलीम इज टॉलर देन अहमद. टॉल टॉलर और कंपैरेटिव के बाद फिर देन भी इस्तेमाल होता है, राइट. सो ये दो के दरमियान है और ये भी हमें जहन में रखनी होगी कि हम इंसानों का मवाजना इंसानों से करेंगे, चीज़ों का मवाजना चीज़ों से करेंगे और थिंग्स पर्सन्स और प्लेसेस का मवाजना प्लेसेस से करेंगे, जगहों से. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट रबात इज बिगर देन रानी, राइट, और दीर इज स्मॉलर देन स्वात, राइट. सो बेगर देन जगहों की मुकाबला हम जगहों से करेंगे, चीज़ों का मुकाबला हम चीज़ों से करेंगे. फॉर एग्जांपल अ मोबाइल फोन इज मोर एक्सपेंसिव देन अ टीवी सेट. तो दोनों चीज़ें हैं, राइट. तो यही ख्याल भी हम रखेंगे. और तीसरा जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव में हम दो के दरमियान मवाजना करता है, दो जगह है, दो चीज़ें हैं या जो बंदे हैं और इसमें हम आपस में मवाजना करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री में मवाजना एक का कंपैरिजन ऑफ वन विद ऑल, एक का मवाजना सबसे होगा, ख्वाह वो हो घर में हो, क्लास में हो, विलेज में हो या मुल्क में हो या दुनिया के लेवल पर हो, लेकिन एक बंदे का, एक चीज़ का या एक जगह का मवाजना दूसरे सारे जगहों, बंदों या चीज़ों से होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट बिलाल इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बिलाल क्लास में सबसे लंबा स्टूडेंट है. अहमद इज द नाइसेस्ट पर्सन इन द स्कूल, अहमद स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का है, राइट. Now the question arises that how can we will make the positive, the comparative and the superlative form. From the positive form how can we will make? So there are 4 general way, 4 तरीक़ों से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाता है. पहला जो आम तरीक़ा है जब एडजेक्टिव 1 सिलेबल हो, एक सिलेबल हो, एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव जब हो तो हम एडजेक्टिव के साथ ई आर का इजाफा कर देते हैं और हम कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं और ई एस टी का इजाफा करके हम सुपरलेटिव फिर बना लेते हैं. जब एडजेक्टिव 1 सिलेबल हो मतलब छोटा लफ्ज हो. सिलेबल क्या होता है? सो सिलेबल इज द डिवीजन ऑफ अ वर्ड इनटू स्मॉलर यूनिट. जब हम किसी लफ्ज को छोटे छोटे यूनिट में तकसीम करते हैं तो यही सिलेबल है. तो बाज़ वर्ड्स ऐसे हैं, अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सिलेबल होते हैं, छोटे अल्फाज होते हैं, जैसे टॉल. तो टॉल हम जुदा नहीं कर सकते हैं, इसकी बजाय हम इंटेलिजेंट, ये 3 सिलेबल है. सिमिलरली इम्पोर्टेंट 3 सिलेबल है, तो ये जुदा होते हैं, इसमें डिवीज़न हो सकते हैं, लेकिन टॉल आप इसका मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता है, स्मॉल, नाइस एट्सेट्रा. तो जब 1 सिलेबल हो तो इसके साथ ई आर का इजाफा हम करते हैं और कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं और ई एस टी का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री हम बना लेते हैं. जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, नाइस,
नाइसर, नाइसेस्ट। अगर कोई भी एजेक्टिव पहले ही से ई पर ख़त्म होता हो तो फिर उनके साथ सिर्फ ई आर का इजाफा किया जाता है। जैसे NICER हमने यहाँ इजाफा किया है, अगर पहले ही से ई पर ख़त्म होता हो, और अगर ई पर नहीं तो फिर ER का इजाफा हम कर लेंगे। इसी तरह जब कोई भी एजेक्टिव वाई पर ख़त्म होते हो, अगरचे दो सिलेबल हो, ये ज़रा एक्सेप्शन है कि अगर जो भी एजेक्टिव वाई पर ख़त्म होते हो तो अगरचे सिलेबल उनके दो है लेकिन फिर भी इनके साथ वाई को आई में तब्दील किया जाएगा और ER का इजाफा किया जाएगा फिर इसको। जैसे हैफ़ी, हैप्पियर देन हैप्पीएस्ट। Bilal is a happy boy, Ahmad is happier than Bilal, and Kashif is the happiest student in the class, in the village, in the school, in the country, in the world. Right? Pretty, prettier, prettiest. तो इसी तरह हम वाई वाला जो है अगरचे दो सिलेबल हो लेकिन जब वाई पर ख़त्म होते हो तो ये ER और EST में तब्दील होगा। तीसरा जो है वो जब एक एजेक्टिव डाई सिलेबल हो या मल्टी सिलेबल हो, मतलब डाई मीन दो या मल्टी दो से ज़्यादा सिलेबल हो, तो इनको चेंज करते हुए हम कंपेरेटिव के साथ मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाएंगे? मोस्ट। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट ज़हीन, मोर इंटेलिजेंट निस्बतन ज़हीन, एंड मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा ज़हीन। अगर हम कहें खालिद इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, काशिफ इज़ मोर इंटेलिजेंट देन खालिद, एंड सईद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, इन द स्कूल, इन द विलेज। राइट? इसी तरह इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अहम, निस्बतन अहम और सबसे ज़्यादा अहम। Right? For example, if we say that Urdu is an important language, right? Then we say that English is more important than English because it's an international language. And then we say that Arabic is the most important language because it's the language of our religion as well. राइट? सो इसी तरह इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। और चौथा जो तरीक़ा है वो इर्रेगुलर है, इनके कोई ख़ास कायदा कुलिया नहीं है, लेकिन ये सिर्फ चंद अल्फाज है, 10-12 अल्फाज है, एडजेक्टिव है जो इर्रेगुलर तरीक़े पर हम इसके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट। गुड मीन अच्छा, बेटर मीन बेहतर, एंड बेस्ट मीन बेहतरीन। For example, Bilal is a good boy, Ahmad is better than Bilal, and Muhammad is the best boy in the class. Right? इसी तरह bad, worse, worst. Bad mean बुरा, worse mean निस्बतन बुरा, and worst mean सबसे बुरा. For example, we can say that nowadays the situation in Pakistan is bad. आजकल पाकिस्तान की हालात अच्छे नहीं है, मुकम्मल अमन नहीं है। If we can say that in 2014 the situation was worse than nowadays. 2014 में हालात इससे भी ख़राब थे, दीर में ख़ासकर और स्वात में मलाकन डिवीज़न में। And we can say that in 2009 the situation was worst. बहुत ख़राब थे, लोग यहाँ से नकल मकानियाँ कर रहे थे अमन व अमान की सूरत हाल में। तो द सिचुएशन वाज वर्स्ट इन 2009। वर्स्ट मीन सबसे ख़राब थे। राइट? सो इसी तरह बैड, वर्स, वर्स्ट। वी कैन आल्सो टॉक अबाउट दैट माइक इज़ अ बैड बॉय, तुशियो इज़ वर्स देन माइक, एंड देन वी कैन से दैट Bob is the worst boy in the class. Or we can talk about any name or any person or anything. Yeah, right. If we can say good, better, best may also that Pakistan is a good place to live. Right? Then we can say that Egypt is better than Pakistan to live, and Saudi Arabia is the best place to live in the world because the holy places are there in Saudi Arabia. We can easily perform Hajj and Umrah over there if a person is in Saudi Arabia. So that's the, you can talk about this way as well.
right? You can talk about the books or about anything in this way. So dear student, that was the adjective, definition of adjective and degrees of adjective, and how to make the comparative and superlative degree of adjective. We have discussed these things. Try to read it again and again, and try to share with all your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.